Hello and welcome. Do you know what is difference between learning and training? If you are aware, then you will be able to answer a question that has been asked in Civil Service Examination 2019. And the question was that differentiate between learning and training and discuss any two method of executive training, in the organization. I have question here. I can read that thing verbatim and that learning and training. I will read that thing, just it is opening. Then what is the difference between learning and training? Now see this thing. Even if you are not well aware, you can answer this question. This question has been asked in educational psychology, but you can connect this question with organizational behavior also. But what is in order to understand this concept, I let you should answer my question. That when you say that driving, when you learn driving, it should be called learning or training. It involves both. So training is a larger concept. How to change gear, how to apply brake, how to steer the things, steering. You are learning. Your demonstrator will, show that this way you can change your gear. Okay, you have learned. Now you do practice. Actually, you do this thing. You actually change the gear. Okay? And that practice take you one step further. So when you say training, it involves what? It involves learning and plus practice. You can learn many things. Suppose how to, I have given example. I need not to give. You can think of several examples of that. That in one go you can learn many things. You can learn, for say, have you learned how to drive? Yes. In moment you can learn, but technically, you say that are you well trained? No, because you have not done practice. So in when you do practice, then you will call yes, he has learned also and he is well trained also. Means actually you have done. So learning is basically how to do something. Okay, and practice is actually doing. So how to do, that is learning association. For example, you are, see, you take example, you can take theoretical example also. Skinner trained many rat to press the lever in order to get food pellet. So in order, he trained actually by using method of operant conditioning. So you can think of that example also, because here we are discussing a concept that we can apply a practical example also. So how to play a guitar, one can demonstrate. When you actually do, you are getting trained. So understood what is difference between learning and training? Okay. Now because this question has only 10 marks, so you should understand this thing, that when both things are there, it's called training. Okay. Now executive training method. Executive training method. Two executive training method. You may say that, oh, आपने तो ये बताया नहीं, executive training method क्या होता है? See, such question could be asked, many question could be framed that is from real life, and exact wording no any teacher can tell you that. अदरवाइज आप मेमोरी से जाके लिख दोगे. आप सोचो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग होता क्या है. सपोज यू विल बिकम, you clear this examination, some examination, and become administrative officer. You will be trained. How? Two models are there. One is coaching model. There the structure is developed, logical structures is developed to, impart training. For example, you suppose you are being, you are getting trained at Sardar Vallabh Bhai Police Academy, Hyderabad, for
being IPS officer. Okay, so there you will be trained for what? That what situation you will find in policing, what is that, what is working hour, what kind of challenges you will have. So all the things that have been accumulated, there is a designing of the course, coaching course, that what is likely situation you will face, that has been conceptualized and coaching is given. Getting that? So at the level of, you can say that you will learn all the things, you will become acquainted. So this is coaching method. Of course, that have practical part also, but on the job training, or that is called field method. Field method ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो तरीके से ट्रेन किए जाते थे पहले, क्योंकि एक तो कोचिंग जैसे ऐसे होता है, उसके बाद उसको फील्ड में भेजते, पार्ट 1 पार्ट 2. सो इसको आप एक ही में मान भी सकते हो, कोचिंग प्लस फील्ड ट्रेनिंग. एंड सेकेंड इन दैट बॉटम अप, that if you want to be traditionally, what was the method before induction of such a course like MBA and all these things. ये MBA जो कोर्स करते हो एक्चुअली क्या है? कोचिंग टाइप कोर्स है. बट इफ यू डू गो इन some organizations and you get managerial training, then that is actually you are doing this. So theory and practice. So in coaching you get theoretical knowledge also, all the things that you are required to do. एंड देन यू इन फील्ड सीक, जैसे आप मॉब को मैनेज करना है तो हाँ, लीडर को आप टारगेट करो, लीडर को मैनेज करो, तभी मॉब मैनेज होगा. ये तो आपने सीखा ना. व्हेन यू नाउ यू विल गिव इन दैट, वहाँ पे टेम्पल पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, गो एंड डू दिस थिंग. सो यू विल बी अटैच इन डायरेक्टली. उसको आपको IPS थोड़ी बना देंगे, रैंक होगा, लेकिन आप फील्ड में वर्क करोगे किस लेवल पे जाके. आप तो एक हो सकता है कि एक कांस्टेबल के लेवल से ऊपर जाते जाते डिजिग्नेशन आपका वही हो, लेकिन यू विल एक्वायर नॉलेज इन द फील्ड. So that is the method. And second method is that bottom up, that some person has joined at the level of suppose है ना, सब इंस्पेक्टर लेवल पे ज्वाइन किया, कुछ किया, उसको प्रमोट करके लाते हैं ना कि DSP लेवल पे आ गए या जिस पे. तो वो जो बॉटम अप आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, दैट दोज हु हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड कुड बी ट्रेन टू बिकम अ लीडर ऑफ दैट फील्ड. So traditionally, many organizations, अगर आप organizational behavior के बारे में पढ़ेंगे, then this was very popular thing, that supervisor will give extra training to some individual, and then वो कुछ select होते हैं जो ऊपर की तरफ ट्रेन होके चले जाते. तो bottom up हमने ज्वाइन किया सपोज कि सोल्जर्स के रूप में, और हमारा प्रमोशन होते होते ऊपर की तरफ आ रहे. सो दिस इज ऑल्सो अ वे. सो लाइट वाइट मैनेजरियल लेवल पे जाने के लिए नीचे के लेवल से भी लिया जाता था, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप ट्रेनिंग. सो इन प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस, बोथ काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. डायरेक्ट इंडक्शन, जैसे आप एग्जाम पास करके कहीं गए और डायरेक्टली ट्रेनिंग होगा तो कोचिंग प्लस फील्ड ट्रेनिंग. एंड बॉटम अप ट्रेनिंग, बॉटम अप मीन्स आपको हमने सेलेक्ट नहीं किया, प्रमोशंस के थ्रू लाया उसको. यू आर गेटिंग? दोज हु हैव बीन सक्सेसफुल एज अ सोल्जर्स फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बिकम इंस्पेक्टर and they have become at the higher level of this thing. This could be a channel also. So both kind of things is possible. So ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट यही है जो हमने ऑलरेडी बता दिया है. तो ट्रेनिंग में दो मॉडल आपको बताना है. यू कैन डिस्कस दिस थिंग. आपको दूर वाले एग्जाम्पल नहीं लिखने चाहिए, जैसे आपको कोई ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं लिखना चाहिए. वैसे मैंने IPS का एग्जाम्पल दे दिया, वैसे ही आपको कोई भी एग्जाम्पल देना हो, मैनेजरियल सिंपल मैनेजरियल ट्रेनिंग देना है, तो हम डायरेक्ट इंडक्शन करके ला सके, उसको समझाएंगे कि ऐसे ऐसे होता है, फिर ट्रेन करेंगे. दूसरा है जो ऑलरेडी फील्ड में वर्क कर रहा है, जैसे सेल में वर्क कर रहा है, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसको और प्रमोट करके ऊपर लाए, उसको प्रमोट करके मैनेजरियल लेवल पे आए, तो बॉटम अप ट्रेनिंग मॉडल हो गया. वो 2 मॉडल्स है, 10 नंबर लिखना है. विच व्हाट काइंड ऑफ नेम एंड थ्योरीज आप बताओगे, लगे कि इसमें क्या लिखना है. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, क्योंकि ये बहुत ही some things are so established that it doesn't require any references. तो इस तरह के ट्रेनिंग जो है ऑलरेडी प्लेस में है, मतलब हो रहा है. तो इसके लिए यू नीड नॉट टू गिव एनी कोई ऐसा चीज़ नहीं बता रहे जो अजूबा सा हो. तो ये केवल आपको एक्विडेंसेस को दिखाता है ना. ये किसी का ओपिनियन की बात नहीं है, वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस है पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे किया जाता है.
और अगले वाले क्वेश्चंस में जो रिलेटेड चीज़ें होंगी उसके बाद 10 नंबर में आपको प्रिसाइजली आंसर करना है, आपको इधर उधर की बातें नहीं करना है। आपको पूछा गया ट्रेनिंग और लर्निंग में डिफ्रेंशिएट करिए, उसको एग्जैक्टली बताओ, फिर उसके बाद 2 मॉडल बताना है, 2 मॉडल बताओ, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल बोला है कि आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दे, हो गया। तो इस तरीके से आंसर करने से आप पूरा पेपर आंसर कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओ, नहीं कर पाओगे। तो अप्लाइड साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उसको थ्योरेटिकल तरीके से आंसर नहीं किया जाता, उसको किया जाता है अप्लाइड तरीके से, एग्जाम्पल्स रियल लाइफ, तो अब इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी ज़्यादा होगी। अदरवाइज आप केवल स्किनर्स नहीं है क्या, थॉर्नडाइक नहीं क्या, आप यहाँ पे स्किनर और थॉर्नडाइक का राइट थोड़ी कर रहे हैं आप, यहाँ पे एक्चुअली आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो रियल में आपको करना है। तो उसके कॉन्सेप्ट को हम बोरो कर रहे हैं ना, देखो लर्निंग के कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं तो वो तो आएगा ही। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं ना कि कोचिंग मॉडल है, अब कोचिंग मॉडल में सिमुलेशन मेथड आपने लिख दिया कि हम उसको सिमुलेट, तो ये कॉग्निटिव मॉडल पे वर्क कर रहा है कि इस सिचुएशंस में आप एक्चुअली कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो आप एनालाइज करके लिख सकते हैं इसमें, है ना। इसमें ये रेडीमेड बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं बताऊंगा तभी आप लिखेंगे। आपको एक पुलिस ऑफिसर के रूप में जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप कैसे वर्क करेंगे, आप सोच सकते हैं कि हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि जैसे होता है ना कि मॉक ड्रिल करते हैं कि ये होगा तो क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन क्रिएट करके भी किया जा सकता है। तो वो एक्चुअली क्या है कि यू आर गिवन इंफॉर्मेशन, यू आर गिवन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द पर्सन्स हु कुड बी एक्सपीरियंस पर्सन, या उसका जो पूरा डिज़ाइन है सिलेबस का, पूरा जो उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो लाया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। उनको बनाने वाला कौन है, तो जो पहले उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो फील्ड से है वो बनाते हैं उसको, उनके इनपुट के आधार पर उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रोच होता है जिसके थ्रू करते हैं। हालांकि ये बताया गया जाता है कि दोनों में कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, टॉप डाउन या बॉटम अप, या जैसे कहते हैं लैटरल एंट्री, आपने देखा होगा कि यूपीएससी में भी है लैटरल एंट्री कराएंगे। तो यानी कि जो दूसरे फील्ड में जैसे अलग फील्ड में प्राइवेट कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जा सकता है क्या, तो ये लैटरल एंट्री हो गया। तो इसका भी एक मेथड कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है लाने का। लेकिन ट्रेन क्या, ऑलरेडी जो ट्रेन हुआ है वहाँ उसको आप यहाँ ला रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल करता हूँ कि जैसे मिलिट्री में ट्रक ड्राइवर को लेना है तो आप वैसे ट्रक ड्राइवर को सिविलियन लाइफ से ले सकते हैं जिसको ऑलरेडी ट्रक ड्राइविंग आती है, प्लस उसको ट्रेनिंग देंगे। जैसे भाई हेडलाइट ऑफ करके आप चला सकते हो, डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग में चलाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बट लेटरल एंट्री करके भी आप करते हैं। तो ये कुछ मॉडल है जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। आंसर हो गया इसमें। मिलेंगे अगले किसी और PYQ के साथ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।